Technical Communication Part 11. Inspiring to bring a change will motivate you and inspire you to lead ahead. Dear viewers, first of all, I welcome you all watching Inspiring to Bring a Change. Inspiring to Bring a Change is a YouTube channel related to educative and informative. Today, I would like to discuss with you about chronemics. So, let's understand about chronemics. So, dear viewers, a question arises, what is chronemics? I will discuss about this topic. Along with that, let us know about our content, what more I am going to discuss in this entire video. So, our content will be about the chronemics, and I will also discuss about monochronic time and polychronic time. So be with this entire video and let us understand about this all content. It's going to be very fruitful and knowledgeable. So let us begin with this. The major components of non-verbal communication are kinesics, proxemics, chronemics, haptics, oculesis, and paralanguage. So chronemics is exactly the study of the role of time. So chronemics is a non-verbal communication और इसका संबंध होता है time से. So chronemics is one of the subcategories of the study of non-verbal communication. So non-verbal communication का एक part है chronemics और इसका संबंध होता है, relation होता है time से. The study of the communicative function of time is chronemics. Chronemics is used to understand the use of time. Time orientation को हम इस तरह से divide कर सकते हैं. Biological time, human beings ने biological clock बनाया है जो हमारे daily rhythm, daily life को govern करता है. Psychological time हमारी habitual thinking, time experience, हमारा belief और feeling anxious या टाइम ऑब्लिगेशंस या हमारी कोई मजबूरी को हम इंटरनली हम सोचते हैं टाइम के अनुसार, तो वो हमारी साइकोलॉजिकल टाइम कहलाती है. सोशल टाइम एंड कल्चरल टाइम. So the different countries have their different chronemics time, and if we talk about Chinese culture, UK culture, Indian culture, American culture, Japanese culture or Australian culture, everyone they have their different chronemics structure, and on the basis of common cultural differences we can see the perception of time. सभी का एक अलग से स्ट्रक्चर होता है. ऑफिस जाने का समय, खेलने का समय, अगर वहाँ पर दिन है तो यहाँ पर रात है, तो chronemic स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होगा और ये कम्प्लीटली टाइम से रिलेटेड बात हो रही है यहाँ पर. और कल्चरल डिफरेंसेस में भी अगर हम देखें तो फैमिली स्ट्रक्चर, हाइजीन, क्लोथिंग, पर्सनल स्पेस, रिलीजियंस, बिलीव्स, प्रैक्टिसेस, मैनर्स, बॉडी लैंग्वेज, जेंडर रोल्स, रिएक्शंस टू प्रॉब्लम्स, फूड, मील टाइम्स, greetings, modes of communication. So we see that the chronemics structured are very different. All the countries they have their different timing structured, and all the countries have their different time according to Greenwich Mean Time. So Greenwich Mean Time को अब Coordinated Universal Time भी कहते हैं. People in Indian culture they follow IST, that is India Standard Time. Now let us see the last point. Chronemics includes time orient. So time orient का अर्थ यहाँ पर है set period of time, और set period of time में यानी कि हमें important work जो हमें assign किया जाता है, हमें उसको समझना है, organization के लिए काम करना है, हमें planning करनी है, emails, filing, documentation, working on project, ये सारे activities हमें करना होता है, या use of reaction to time pressures. So कई बार ऑर्गेनाइजेशन में वर्क प्रेशर होता है और टाइम बाउंड होता है और उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है.
तो बहुत सारे टाइम जैसे कि हम यहाँ पर बता सकते हैं, जैसे शॉर्ट टाइम, रिस्पॉन्सिबल टाइम, क्विक टाइम, प्राइम टाइम, रियल टाइम, इन सब पर हमें प्लानिंग के साथ काम करना होता है. सो दैट इज टाइम ओरिएंट. Now let us also see the historical background for the term chronemics. So chronemics वर्ड को 1970 में प्रोफेसर थॉमस जे ब्रूनो ने इसको क्वाइंट किया था और इन्होंने ये बताया था कि फंक्शन ऑफ टाइम विद द रिलेशन टू ह्यूमन इंट्रैक्शन, टाइम से संबंधित है. ह्यूमन इंट्रैक्शन में जो भी रिलेटेड टाइम है वो क्रोनेमिक्स वर्ड कहलाएगा. सो प्रोफेसर थॉमस जे ब्रूनो रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और इन्होंने अपनी जो कंप्लीट स्टडीज़ जो फोकस किया था वो था नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, उसके साथ साथ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन पर भी इन्होंने अपनी रिसर्च स्टडी की थी. सो क्रोनेमिक्स होता है यूज़ ऑफ टाइम. तो टाइम परसेप्शन, तो परसेप्शंस यानी कि समझना. तो यहाँ पर हम टाइम से ये समझेंगे कि पंक्चुअलिटी से ये रिलेट करता है, विलिंगनेस टू वेट और इंट्रैक्शन से ये रिलेट करता है. सो कम्प्लीटली इट इज़ ऑल अबाउट द टाइम, दैट व्हाट टाइम यू विल इंटरैक्ट एंड हाउ लॉन्ग विल यू वेट एंड पंक्चुअलिटी बिकॉज रीचिंग to the office on time, and this all completely relates with the time. So the use of time can affect humans lifestyles, daily agendas. इन सब को affect कर सकता है टाइम. अगर आप ऑफिस लेट पहुंचते हैं तो that is a negative impact, and it may also hamper daily agendas. The way in which various cultures perceive time can influence communication. So time के according ही communication भी influence होगा और we need to take care about the time also. So chronomics is the study of how human beings communicate through the use of time. Now let us see this universal facts and figures. Every human being on this earth has 24 hours, and whether it is any part or any location or any country, everyone has one day, and if this 24 hour is multiplied by 60 minutes, then we have 1440 minutes, and if we calculate this in seconds, then we find that 86,400 seconds we have. So this completely it is a time management, and that how we need to complete our work according to the time, that is related to chronomics. Now let us understand about the monochronic time and polychronic time. So it is one of the very fantastic point. So completely if we see this, हम व्यक्ति को दो पार्ट में हम टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं, मोनोक्रॉनिक और पॉलीक्रॉनिक कल्चर्स. तो आइए जानते हैं मोनोक्रॉनिक पीपल कौन है और पॉलीक्रॉनिक पीपल कौन है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है. तो जो मोनोक्रॉनिक ह्यूमन बीइंग है, जो व्यक्ति है, वो क्या करेगा? सो ही डज हिज वर्क एट टाइम. तो वो टाइम से काम करेगा, मोनोक्रॉनिक वाला जो नेचर का होगा. लेकिन पॉलीक्रॉनिक में डू मैनी थिंग्स एट वंस. सो बहुत सारी एक्टिविटीज़ वो एक ही बार में करना चाहेगा. मान लीजिए वो फ़ोन कॉल्स अटेंड कर रहा है और साथ साथ लंच भी कर रहा है. So he is doing two activities, but here monochronic, mono means single and poly means several numbers. All right. So second point we see here that concentrate on the job. वो अपने जॉब पे ध्यान देता है जो मोनोक्रॉनिक नेचर के होते हैं, और पॉलीक्रॉनिक में they are highly distractible. मोनोक्रॉनिक में होता है they take time commitments seriously, और पॉलीक्रॉनिक में होता है they consider time commitments casually. तो यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान नहीं देता है, काम को लटका के रखता है या लिंगर ऑन द वर्क. एंड मोनोक्रॉनिक प्रवृत्ति के लोग हमेशा कमिटेड टू द जॉब होते हैं. पॉलीक्रॉनिक में दे आर कमिटेड टू द पीपल, वो रिलेशंस को ध्यान देते हैं. और मोनोक्रॉनिक में लोग शो रेस्पेक्ट फॉर द प्राइवेट प्रॉपर्टी, रियली बोरो और लैंड. तो ये बहुत ही कम बोरो करते हैं, पैसे उधार नहीं लेते या कोई चीज़ बोरो नहीं करते या लैंड उधार देते भी नहीं है. सो दैट इज़ ऑल. एंड इफ़ वी सी इन अ पॉलीक्रॉनिक पीपल, व्हाट काइंड ऑफ नेचर दे हैव? दे बोरो, दे लैंड द थिंग्स ऑफन, वेरी ऑफन, अक्सर इस काम को करते हैं. और मोनोक्रॉनिक नेचर के जो लोग होते हैं, दे आर एक्स्टम्ड टू शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप्स. तो
इन लोगों का ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशनशिप बहुत ही शॉर्ट टर्म होता है और पॉलीक्रॉनिक पीपल टेंड टू बिल्ड लाइफ टाइम रिलेशनशिप। सो आइए जानते हैं और सीखते हैं कुछ और अमेजिंग फैक्ट्स। सो मोनोक्रॉनिक टाइम और पॉलीक्रॉनिक टाइम में कौन कौन से कंट्री यहाँ पर मेंशन किया है आप देख सकते हैं। सो मोनोक्रॉनिक में सिंगल वर्क सिंगल एक्टिविटी पर ध्यान देता है, शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप होता है और उधार ये कम लेते हैं या देते हैं, लाइक दिस। सो कुछ कंट्रीज़ के नाम यहाँ पर जो ग्रीन पार्ट में मैंने लिखा है, मैंने मेंशन किया है मोनोक्रॉनिक। तो ये कंट्री जैसे जर्मनी, कनाडा, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स और स्कैंडिनेविया, ये सारे कंट्री मोनोक्रॉनिक प्रवृत्ति के होते हैं। मेजरली ये अपने कार्य को फोकस करते हैं, टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देते हैं, अपने एक्टिविटीज़ को वन टाइम ये कमिटेड होते हैं और इस तरह से ये मोनोक्रॉनिक नेचर के लोग होते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द पॉलीक्रॉनिक ऑल्सो। सो पॉलीक्रॉनिक यानी कि सेवरल एक्टिविटीज़ ये करते हैं, उधार ज़्यादा लेते हैं, उधार देते भी हैं और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पर इनका भरोसा होता है, बिलीव होता है, हार्डवर्क ये करते हैं और इनका मानना है कि सेवरल एक्टिविटीज़ उनको करना चाहिए जैसे कि उनका एक्सपीरियंस और बढ़े, लेकिन टाइम मैनेजमेंट पर ये ध्यान नहीं देते हैं और कुछ ना कुछ फेलियर्स सामने आता है। सो कुछ कंट्रीज़ के नाम यहाँ पर मेंशन किया है जैसे कि सऊदी अरेबिया, फ्रांस, इजिप्ट, ग्रीस, मैक्सिको, फिलीपींस। तो ये सारे के सारे जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पर ये पॉलीक्रॉनिक नेचर के ह्यूमन बींग्स यहाँ पर रहते हैं, मल्टीटास्किंग होते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ ये करते हैं। Now finally I would also like to share some important quotes on time. So time is precious, time is money, and time and tide wait for none. A stitch in time saves 9. Lost time is never found again. Time is the best healer, and time is the wisest counselor of all. Finally, I would like to end my video with one of the positive notes. Work while you work, play while you play. This is the way to be happy and gay. One thing at a time and done well is the best rules as many can tell. So work while you work and play while you play. Thank you so much for listening to me. Thank you once again.